Here in the governance section, we can see inventory management module. So this module will help you to manage the stock, whichever you buy through your vendor or directly. You can add, you can list the stock, you can assign to the department or any other direct employee at administrative authority through the through this module. So first, I will say what we are still in processing to implement in this module. There is a process which is not available currently in this module. So that is in our process in pipeline. Whenever it will be completed, we will inform you. But apart from that things, everything is available in our module. So here, this is the dashboard of the module. One more thing, you can some university had uh, stock detail department wise. Few universities directly handle through the central store. So both way they can handle, because these module is there is available to role assigned to the role, such as departmental role or admin role. So they can add their stock as a department, and admin can add their centrally stock details. So both way they can handle, or institute can handle. So then I will also explain as a prerequisite of this module. We required, or modules required, first required to add vendors detail. Vendors detail, here is the vendors detail. You can see vendor detail. There is a process of adding, uploading bulk vendor through the Excel sheet and individual year. So here few details is required to add, because this is actually this vendors detail is related to the bill module or FSCM module. So uniquely and correctly it is handled by the module. So you need to add all the details, not wrong details, so that in future, if you are using our FSCM module or you want to pay something to the vendors details, so account and their PAN number is required. That's why you need to add all the correct detail, all the vendors detail which is mentioned in the stock bill or purchase bill. Okay, so this is the prerequisite which is required to add before starting the module. Now, before विवेक सर, starting the module, yes sir. हेलो सर, एक क्वेरी Hello. उसमें जो आपने वेंडर डिटेल वाला आपने सेक्शन खोला था ना, वेंडर डिटेल वाला, हाँ 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 उसको जरा एक बार ओपन करिए। जी। हाँ, एक बार वेंडर डिटेल वाला सर, जो उसमें डिटेल है, जो आपने मांगा है, इसमें जो एस्टेरिक लगे हैं, मैक्सिमम कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल जैसे जैम से इनवॉइस जो आता है हम लोग के, उसमें उनका हम्म। पैन नंबर और टैन नंबर नहीं होता है ना? नहीं। तो वो कहाँ से डालेंगे हम लोग? हाँ, जहां तक सर मुझे ईमेल पता है, आईडी। पैन नंबर, यस, पैन नंबर जो है उस बिल पे, बिल का लास्ट 6 डिजिट या फर्स्ट 6 डिजिट होता है। कोई कंफर्म कर सकता है इसमें, अगर वो है और सर टिन नॉन जैम नंबर। के लोगों, जी। जैसे बहुत सारे जो बिल नॉन। हम लोग के हम लोग का यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बिल ऐसे आते हैं जिसमें वेंडर का ना पैन नंबर ना उनका और ईमेल आईडी और और ईमेल आईडी, टैक्स डिटेल्स, ये सब नहीं, टैक्स डिटेल्स नहीं होते हैं उनका। सर ये नहीं मैंडेटरी मैं थोड़ा। नहीं, टैक्स डिटेल तो नहीं। जैसे इसमें आप देख सकते हो, वेंडर्स टाइप आपको एक बनाना होगा वेंडर में जाके। इसके लिए आपको एक हेल्प हो जाएगी। मतलब वेंडर्स डिटेल में आपको एक वेंडर डिटेल बनानी होगी, जहाँ पे उसका जीएसटी, ये नंबर इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। तो लास्ट के जो ये कुछ डिटेल है वो हाइड हो जाएगा। टिन नंबर इज अभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैन नंबर सबका इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल रहे हो कि कोई परचेज बिना जेम के है या बिना पैन नंबर के परचेज है, तो उस केस में थोड़ा मुझे देखना होगा, क्योंकि आई थिंक पैन नंबर तो इम्पोर्टेंट है। मैं बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, बट क्या होते हैं बहुत सारे बिल ऐसे आते हैं जिसमें वेंडर का पैन नंबर नहीं लिखा रहता है, तो फिर हम लोग कैसे उसका पैन नंबर निकालें? नहीं, बिल में पैन नंबर जो बिल के साथ होता है, आप एक बार चेक करिएगा इंफॉर्मेशन। आई थिंक उसमें होता है सर लास्ट वो सिक्स होता है, डिजिट इज अ पेन, जेम में लाइक ए होता पेन है। नंबर। सर जेम में होता है, बट मैक्सिमम नॉन जेम बिल में कहीं नहीं होता, ना जीएसटी, ना पैन, ना ईमेल आईडी। नॉन जेम बिल वाले में प्रॉब्लम आ रही है सर। प्लस दूसरी, अगर मुझे बैक डेट का डाटा उठा के डालना है, तो हमारे पास बिल डिटेल्स है नहीं। जैसे हम आगे फाइनेंस को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसका कहाँ से हाँ डाले? मैं जी, चाह रहा बिल्कुल था आप सही कह रहे 2021 हैं से कि आपके जो, डाटा देखिए, डालूं।
पुराने स्टॉक्स में जो आप डालेंगे, देखिए पहले तो दो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करिए। मेरा मतलब सजेशन, वैसे तो कर आप सकते हैं, जो एटलीस्ट जो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है उसको आप लेके आए सिस्टम पे। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आप उन डेटा को लेके आए जो आपका जो नॉन कंज्यूमेबल है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस है, जिसका आपका एक तरीके से एसेट्स है, उनको आप लेके आए। और मेरे ख्याल से जो भी आपके एसेट्स हैं उनकी पूरी डिटेल आपके पास होगी। नहीं होगी तो आपको रखना होगा, या आप अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि उसका वेंडर आप खुद यूनिवर्सिटी बने, जिसका अकाउंट नंबर और वो सारी डिटेल वो अपना फिल करे। ठीक है, क्योंकि उस मैंडेटरी फील्ड को हम वहां से रिमूव नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 10 साल पुराना कोई स्टॉक है जिसका डिटेल नहीं है, तो एटलीस्ट उसका कोई एक डिटेल आप अवेलेबल कर लें, मतलब यूनिवर्सिटी की साइट से अवेलेबल कर लें। जैसे वेंडर्स में यूनिवर्सिटी का नाम डाल लें, ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल लें। मैं जानता हूं कि नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं डिटेल्स को, ताकि आप ट्रैक कर पाएं एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप एसेट्स ही पूरा नहीं डाल पाएंगे तो ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। और करंट फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक इस समय तो जो भी परचेज हो रहा है वो सारी डिटेल होंगी। एम आई राइट सर सर? नॉन, हम आपकी बात समझ गए, सहमत हूँ। बट ये सर जैसे नॉन जो जैम बिल होते हैं उसमें पैन नंबर नहीं आते हैं। पैन नंबर फिर क्या, वेंडर कॉल करके मांगे, क्या करे, वो क्या करे? अब बड़े वेंडर कॉल नहीं उठाया, पैन नंबर नहीं मिला, क्योंकि हम लोग क्या जो नॉन जैम के बिल आते हैं उसमें पैन नंबर नहीं आता उनके पास बिल। जैसे कोई कच्चा बिल दे दिया, है ना, हम्म। तो उसमें पैन नंबर तो नहीं लिखा रहता है उनका, फर्म का। तो उसमें अब यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है। नहीं, देखिए एस्ट्रिक लगा है तो आप उस केस में, अगर नहीं है तो फिर एक एक डमी पैन नंबर इंटर करें। और इसके अलावा अगर मैं मान लीजिए पैन नंबर को नॉन मैंडेटरी बना देता हूँ, तो हम्म। उसमें हमारे लिए इशू हो जाएगा कि बहुत सारे बिल में जो होगा वो लेकिन चलेंगे। अच्छा सर, तो डमी बना के उसको कॉमन डाल दें सब में फिर। हाँ, बट उसका पेमेंट के टाइम आपको दिक्कत होगी। मैं एज ए सजेशन दे रहा हूँ, ये करेक्ट वे नहीं है। मैं मतलब यही कहूंगा कि जो भी आप परचेज करें, इस समय तो आई थिंक इस टाइम तो रूल वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट है कि विदाउट पैन नंबर या उसके थ्रू परचेज नहीं करें, चाहे जेम के थ्रू करें या जेम विदाउट जेम करें। मैं आपकी बात चीजें तो समझ रहा हूँ, बिल। बट एक्चुअली हाँ। क्या है ना, वेंडर लोग जो उनके पास जो फॉर्मेट होता है बिल बनाने का, उसमें पैन नंबर हाँ, डालते ही नहीं है। कोई बात वो नहीं। तो सोचते हैं पैन। ऐसे होता है ना कि हाँ। जब आप सिस्टम से नहीं चल रहे होते हैं तो बहुत सारी हाँ, चीजें होती हैं। बट आप सिस्टम से चलने लगेंगे तो आज से ही एटलीस्ट आप पैन नंबर इकट्ठा कर लेंगे, जो भी ठीक है। आपका वेंडर होगा। जो मतलब ये पुराने बिल्स एस्टिक हैं। सर, ये मतलब ये एस्टिक जितने भी एस्टिक है वो, जैसे मान लीजिए बहुत बहुत है जो हम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे डिटेल हम्म जो हम लोग भरने पड़ते हैं जो नेसेसरी नहीं होते हैं किसी आपके सेंट्रल स्टोर में या फिर किसी और भी इंस्टीट्यूट के, जो भी उनका रूल होगा रेगुलेशन में। हम्म तो हम्म। वो बस एस्टिक हट नहीं सकता, मतलब ये कॉमन हेलो है ना? जी जी, वो कॉमन है। ईमेल जी आईडी की टाइम सर। जी कॉन्टैक्ट जी, बताएं सर। सर एक सजेशन है कि रिपीटेड क्वेश्चंस बाद में लास्ट में डिस्कस कर लो। मतलब मॉड्यूल पहले समझा दो, ये 10 ये और भी हो 10। सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसा हाँ कि सर ने सजेस्ट किया, हम क्या करते हैं कि एक बार मॉड्यूल को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेरी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल डिस्कस ओके करेंगे, हम लोग ओके के सर, पास टाइम ओके है। ओके, ठीक ठीक है है, सर। ओके ओके, ओके हाँ, ओके सर, ओके। ठीक है। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग द सेटिंग्स पार्ट बिकॉज कोई भी मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करने से पहले वी विल गो फॉर द सेटिंग्स एंड वी जस्ट कॉन्फ़िगर द important settings so that we can add all the stock detail or we can add other details. Okay, so is master setting we can see in the settings part: storage, warehouse, tax detail, category, subcategory. These are the uh, uh, main settings where you can configure and you can start the module. Later on we will discuss one by one, but first we will go to the storage location, storing and warehouse details. So you will add here storage location detail. Storage location detail means if you have a central storage location, single storage, you can add the name. Otherwise, if you have departmental storage, you can add like this way. For example, I am adding here storage. I will map your with your university location, admin block, और जो आपका होगा वो डाल सकते हैं। और नाउ यू विल डिफाइन योर स्टोर टाइप। स्टोर टाइप
मीन इज इट सेंट्रल और इज इट डिपार्टमेंटल? तो एक तो सबके पास सेंट्रल होता ही होता है, देन यू कैन ऐड अदर डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल, जो डिपार्टमेंटल जो स्टोरेज लोकेशन होता है वो। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ट्रिकी है या कह सकते हैं ऐड है, बाकी बहुत ही सिंपल है, आप स्टोरेज लोकेशन को ऐड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सेटिंग्स में सबसे पहले आप सारे स्टोरेज लोकेशन को ऐड करेंगे। अगर सिर्फ सेंट्रल है तो आप सेंट्रल, बाकी डिपार्टमेंटल आप स्टॉक हैंडल करते हैं तो यू विल ऐड ऑल द डिपार्टमेंटल स्टोरेज लोकेशन। देन ये जो डैशबोर्ड हमने दिखाया था, अभी डैशबोर्ड पे भी एक्सप्लेन करेंगे। ये जो सेटिंग्स मैं दिखा रहा हूँ, इसके लिए एक आईएमएस एडमिन रोल है, मैं रोल के बारे में भी दिखाऊंगा, उस रोल के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, टैक्स डिटेल कैसे ऐड करेंगे? टैक्स डिटेल यहाँ पे ऐड टैक्स डिटेल, सिंपल 3 टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे आपको टैक्स डिटेल ऐड करना है। जैसे कि हमने ऐड किया CGST, ओके, ऑलरेडी ऐड है तो ये ऐड नहीं होगा। CGST आपको ऐड करना है 4%, 8%, जो भी 2-3 स्लैब हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ एक्टिव करके सेव कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से SGST, उसी तरीके से GST। ठीक है, अगर किसी आइटम पे नहीं लग रहा है टैक्स तो आप यहाँ पे नील करके 0% ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑल टैक्स एक बार आपको ये ऐड करना है, सारी सेटिंग्स वन टाइम कॉन्फ़िगरेबल है, ऑल द सेटिंग्स आर वन टाइम कॉन्फ़िगरेबल, सो यू विल ऐड ऑल द टैक्स डिटेल हियर, clicking at the add tax detail, simple name the tax and their percentage of the tax, okay. देन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो कैटेगरी में आपको ऐड करना है ऐड ऑल द कैटेगरी हियर। कैटेगरी आर डिफाइंड एज टू टाइप ऑफ कैटेगरी इज देयर, 2 टाइप, लाइक कंज्यूमर एंड नॉन कंज्यूमर। तो आपको कंज्यूमर के सारे कैटेगरी डिफाइन करने हैं और नॉन कंज्यूमर के डिफाइन करने हैं। ये बहुत ही बेसिक है, ये आप लोगों ने अपने स्टॉक रजिस्टर में डिफाइन भी किया होगा। तो यहाँ से कंज्यूमर सेलेक्ट करके, अगर आपके पास कोड है तो आप कोड डाल दें, ठीक है, नहीं कोड है तो आप इसे स्किप कर दें। नेम ऑफ कैटेगरी में आपको डालना है यहाँ पे कंज्यूमर टाइप में। ठीक है, जैसे अगर हमने नॉन कंज्यूमर लिया और यहाँ पे डाल दिया लैपटॉप, इसी एक एग्जांपल से आप पूरा समझ सकते हैं। जैसे नॉन कंज्यूमर हमने लैपटॉप डाल दिया और यहाँ पे एक्टिव किया, सेव कर दिया, ये ऑलरेडी सेव है इसलिए दिखाएगा कि सेव है। ठीक है, अब हमने, या फिर आप जैसे अपने बुक में डिफाइन करते होंगे, या फिर मैं इसे इसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक, मैं मतलब एक जनरल नाम दे दूं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, एंड इसे सेव कर दो। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको यहीं इसका कैटेगरी डिफाइन कर दें, अदरवाइज आपके पास सब कैटेगरी का ऑप्शन है। सब कैटेगरी में इसी कैटेगरी के अंडर आप सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएं, वो सब कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसके बाद उस कैटेगरी का आप डाल सकते हैं लैपटॉप। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, इधर यू कैन डू डायरेक्टली कैटेगरी यू कैन डिफाइन, और यू कैन डिफाइन एज ए जनरल कैटेगरी देन देयर सब कैटेगरी, राइट। यहाँ पे सर सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो कैटेगरी एंड सब कैटेगरी यू विल डिफाइन, देन you can start the module. Remaining these things I will explain one by one when we will go to the next step. लास्ट में एक रोल एंड डिस्क्रिप्शन है, उसको मैं बताता हूँ। अभी तक जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, we will do using IMS_admin role. Admin role, this will be applicable for store admin, जो इन स्टोर का इंचार्ज होगा उसके लिए ये रोल है, ताकि वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कर ले। उसके डैशबोर्ड पे सभी का जो डिटेल, स्टॉक डिटेल ऐड किया गया वो दिखेगा, यानी कि सारी एक्टिविटीज दिखेंगी। ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन में डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, यानी कि डिपार्टमेंट अपना खुद स्टॉक ऐड करता है, परचेज करता है, तो वो IMS डिपार्टमेंट रोल आप उनको प्रोवाइड करेंगे सेपरेटली। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन को ओपन करेंगे, IMS डिपार्टमेंट के थ्रू देखेंगे तो वो उनका ही सिर्फ स्टॉक दिखेगा, वो क्रॉस डिपार्टमेंट का स्टॉक नहीं देख सकते, ना ही वो सेंट्रल के सभी स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल ऐड करेगा वो सभी को दिखेगा, यानी कि जो सेंटर IMS एडमिन से ऐड होगा वो सभी को दिखेगा, बट डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट दिखेगा। ठीक है, IMS यूजर यू विल प्रोवाइड ऑल द यूजर्स, ऑल द एम्प्लॉय लॉगिन, सो दैट दे कैन रेज द इंडेंट रिक्वेस्ट थ्रू द पोर्टल। मैं वो भी दिखाऊंगा अभी लॉगिन करके, इसलिए IMS यूजर को आप यूजर रोल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई ऐसे हायरार्की में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे अथॉरिटी है जो सिर्फ इस एक्टिविटीज को देखना चाह रही हो, बट उसमें कुछ एक्सेस ना कर पाए, एडिट ना कर पाए, अपडेट ना कर पाए, तो आप उसे IMS एडमिन व्यू रोल दे सकते हैं। ठीक है, IMS डीलिंग अथॉरिटी आप उस पर्सन को दे सकते हैं जो स्टॉक को ऐड करेगा। कभी कभी किसी इंस्टीट्यूट में हायर अथॉरिटी नहीं चाहती कि वो अपने रोल से ऐड करे, तो उसके पास IMS डीलिंग असिस्टेंट रोल है, जो किसी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ID को आप
असाइन कर देंगे तो वो पर्टिकुलर स्टॉक ऐड कर सकते हैं। बट स्टॉक ऐड कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशन है, स्टॉक ऐड करना अपडेट करना, इससे ज़्यादा उनकी लिमिटेशन यहाँ पे बाउंड है। ठीक है। देन 6, 7 एंड 8 ये जो रोल है, इन रोल के द्वारा आप जो है अप्रूवल अथॉरिटी को परफॉर्म करें, यानी कि कोई इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करेगा, कोई वेरीफाई करेगा, कोई अप्रूव करेगा, कोई एलोकेट करेगा। तो ये इन रोल्स के द्वारा करेंगे, ये मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये रोल है। अभी हम जो इस डैशबोर्ड देख रहे हैं वो आईएमएस एडमिन के द्वारा देख रहे हैं। ये डैशबोर्ड आपको कंप्लीट दिखाएगा कि टोटल कितने स्टॉक ऐड है, कंज्यूमर नॉट कंज्यूमर नॉट, ये सारा आइटम दिखाएगा। ठीक है। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिसेंट एक्टिविटी एडमिन देख सकता है कि कौन इस मॉड्यूल में क्या एक्सेस कर रहा है या क्या ऐड कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट द्वारा क्या ऐड हुआ है। और यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज टोटल डिटेल दिखेगी। लास्ट में आपको टॉप वेंडर्स की लिस्ट दिखेगी जहां से आपने सबसे ज्यादा स्टॉक परचेज किया। तो एज ए एडमिन स्टॉक पूरा डिटेल देखने के लिए उसके पास डैशबोर्ड है, और सेम डैशबोर्ड जो है डिपार्टमेंटल को भी दिखेगा अगर उन्होंने अपने आईएमएस डिपार्टमेंटल लॉगिन दिया हुआ है। अच्छा, उनके डिपार्टमेंट में सिर्फ उनका स्टॉक दिखेगा, ना कि सबका दिखेगा। बट एज ए एडमिन जो सभी डिपार्टमेंट ने स्टॉक ऐड किया वो कंसोलिडेट करके देख सकता है। तो यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। जो रोल मैंने समझाया, जो सेटिंग्स समझाया, सेटिंग्स आपने कर ली हैं और वेंडर्स आपने ऐड कर लिया है। देन यू विल गो टू द स्टॉक डिटेल। स्टॉक डिटेल पेज पे आप सारा उस अपने स्टॉक्स जो हैं, जो पहले परचेज हैं या अभी परचेज करेंगे, वो सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। पुराने जो स्टॉक हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करने के 3 तरीके। देयर इज 3 वे टू ऐड स्टॉक डिटेल। फर्स्ट, बाय add stock detail individual, then add stock detail in a single bill. There are multiple stocks you can add through the second option, add stock detail in bulk. And last, bulk import stock detail through the excel sheet. तो excel sheet से भी आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। बट इस excel sheet का जो उपयोग है यूनिवर्सिटी अपने पुराने स्टॉक्स जो हैं उनके लिए करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी मैं इस एक्सेल शीट को भी एक्सप्लेन करूंगा। इन एक्सेल शीट में वही डिटेल है जो आप इंडिविजुअल स्टॉक डिटेल में ऐड करते हैं। ठीक है। तो मैं ऐड स्टॉक डिटेल इंडिविजुअल पे आता हूं और एक स्टॉक डिटेल आपको ऐड करके दिखाता हूं। ठीक है। परचेज ऑर्डर नंबर आपने डाला, परचेज ऑर्डर नंबर आपने डाला कोई सा भी। ठीक है। बिल नंबर आपने डाल दिया, बिल डेट, परचेज थ्रू जीएसएम, यस और नो। नो करेंगे तो डिटेल आगे नहीं पूछेगा, बस यस करेंगे तो आपको जेम की डिटेल भरनी होगी। बजट हेड, हाँ ये बजट हेड नॉन मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे कंप्लीट फाइनेंस पैकेज को यूज कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंस मॉड्यूल लाइक एफएससीएम एंड बजट, तो उसमें जो आपकी बजट की टीम यहाँ पे बजट हेड कॉन्फ़िगर करेगी वो रिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज ये नॉन मैंडेटरी फील्ड है, यू कैन स्किप हियर। ओके। इन केस कि ये कॉन्फ़िगर है देन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इन्वेंट्री कैटेगरी जो आपने अभी ऐड किया है वो ऐड करेंगे। अगर आपने सब कैटेगरी उसकी बनाई होगी तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। रिटर्नेबल है कि नहीं इस आइटम को आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ परचेज डालना है आपको क्योंकि ये मैंडेटरी है। डेट ऑफ डिप्रिसिएशन और वारंटी आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। वेंडर्स डिटेल आपको डालना है। आपने 3 लेटर टाइप किया, वो वेंडर्स डिटेल आ जाएगा। अब नेम ऑफ स्टॉक आपको डालना है। ठीक है। यहाँ पे उसका और डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे लैपटॉप आपने डाला और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है। यूनिक नंबर, ये यूनिक नंबर सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करता है। यूनिक नंबर वो नंबर होता है कि जैसे अ, आपके पास 10 टेबल हैं या 10 लैपटॉप हैं, तो आपने किस पर्सन को कौन सा लैपटॉप असाइन किया है, इसके तो 2 तरीके हैं। यानी कि अगर वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे सीरियल नंबर भी होता है, बट जैसे टेबल है आपके फर्नीचर्स हैं और भी कुछ चीजें हैं, तो उन पे आप एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं कि इस यूनिक नंबर को इस पर्सन को दिया है, ताकि वो रिटर्न के टाइम सेम आइटम आप रिटर्न ले सकें। तो सिस्टम जितने भी आइटम होंगे
ऑटोमेटिक यूनिक नंबर जनरेट करता है। अगर आपको कोई पैटर्न फॉलो करना है यूनिक नंबर का, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि इस पैटर्न से यूनिक नंबर जनरेट हो जाए, अदरवाइज सिस्टम ऑटोमेटिक वो जनरेट करेगा यूनिक नंबर। स्टोरेज लोकेशन आपने जो डाला है वो आ जाएगा। यूनिट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सारे यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, बाइंग करेंसी आपको डालना है, टोटल क्वांटिटी आपको डालना है। ठीक है, और जेम के थ्रू अगर बिल है, जैसा कि हमने जेम के थ्रू लिया है, तो जेम बिल पे जो डिटेल होती है बस आपको वही डालना है। ठीक है, यूनिट प्राइस आ जाएगा, ग्रॉस कैलकुलेशन आ जाएगा, डिस्काउंट है, अगर आपको डिस्काउंट इस पे है तो आप डाल देंगे यहाँ पे, अदरवाइज आप उसे स्किप कर देंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, अप्लीकेबल टैक्स आपको यहाँ पे एक बार चूज करना है, मोर देन वन टैक्स आप चूज कर सकते हैं। टैक्स अमाउंट भी आ जाएगा, एडिशनल चार्ज है इस पे कुछ ले जाने लाने में भाड़े में, तो आप ऐड कर सकते हैं, राउंड अप इसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इस जगह पे नॉन मैंडेटरी है, बट आप चाहें तो स्टॉक की इमेज आप अपलोड कर सकते हैं या बिल अपलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर योर रेफरेंस। सेव करें, एक्टिव करें और सेव करें, इजीली स्टॉक आपका ऐड हो जाता है। इस तरीके से आप इस स्टॉक को ऐड कर पा रहे हैं। अब आपने इसमें कुछ करेक्शन करना है, जो आपका स्टॉक ऐड हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन है अपडेट बटन का, आप यहाँ पे प्रिंट लें, स्टॉक को वेरीफाई करें कि सारे स्टॉक अच्छे से ऐड है कि नहीं, और उसे फाइनली अगर अगर करेक्शन करना है तो अपडेट करें, अदरवाइज उसे फाइनली सबमिट करें। मैंने इसे फाइनली सबमिट किया क्योंकि इसमें मुझे कुछ करेक्शन नहीं करना है। ठीक है, सेकेंडली जो ये सेकेंड ऐड स्टॉक डिटेल इन बल्क है, सेम डिटेल आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, बट इसमें कुछ जो कॉमन डिटेल होती है वो ऐड रो के थ्रू आप इसमें मल्टीपल स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही अंतर है, अदरवाइज आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब हमने जो स्टॉक ऐड किया है वो आपकी यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आप देखें यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर सिस्टम जनरेटेड है, इसका पैटर्न ये है 2026, यानी कि ईयर, मंथ और आईएमएस का काउंट शो कर रहा है। कुछ डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, और ये कुछ क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। क्यूआर कोड जनरेट होता है। ठीक है, आप यहाँ से स्कैन करके इमेज डिटेल ले सकते हैं। स्टॉक अपलोड होता है, यहाँ पे दिखाता है, रेफरेंस नंबर आ गया, इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लें, अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो सीरियल अपलोड करने के लिए। ठीक है, इस स्टॉक में कुछ फॉल्टी है तो आप यहाँ पे ऐड फॉल्टी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड सीरियल नंबर करना है, यूनिक नंबर जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं यूनिक नंबर जनरेट हुआ, हर यूनिक नंबर के अगेंस्ट में एक बारकोड जनरेट हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। सीरियल नंबर ऐड करने के लिए आपके पास सिंपल ये एक एक्सेल शीट आ जाती है, जो कि एक्सेल शीट पे आप उस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में, जैसे मान लीजिए हमने 3 क्वांटिटी ऐड किया है, तो तीनों क्वांटिटी के अगेंस्ट में कुछ भी सीरियल नंबर हो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। So can I get his number, sir? Okay, sir. Okay, thank you. ठीक है, व्यू सीरियल नंबर, यूनिक नंबर। Hello, good afternoon, sir. Are you this side from project, sir? ठीक है, देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। वो यूनिक नंबर अलग अलग नहीं था, इससे नहीं लिया था, वैलिडेशन भी है कई जगह, तो आप देख सकते हैं। Okay, sir, please Okay. let me confirm, please confirm me. These are the serial number, these are the unique number. Okay, we can see. अब आगे चलते हैं। As we can see that stock has been added. Now you can assign this stock directly to the employee, admin or any else. Like I will go here, click here, stock view, and I will Okay, sir. assign this stock to the Can connect. person. Like there is an option to issue inventory. अब आप देखें यहाँ पे issue to per person type. There are 4 category: employee, administrative, student, and other. So if you select employee, your employee list will reflect here. Just type 3 letters. Employee will reflect here. You will select here and issue the item. Number of item issue. Just select the serial number, unique number. Okay, issue date, till date,
एंड अगर आपके पास कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, सपोर्ट यानी कि कुछ रेफरेंस आया हुआ इशू करने का, तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। रिमार्क आप डाल दें, रिमार्क बाय इशूअर, इशू कर दें। अब आप देख सकते हैं जो इशू लिस्ट है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। चूंकि आइटम रिटर्नेबल है तो एक्सेप्ट रिटर्न का भी ऑप्शन है। रिमाइंडर भी आप सेंड कर सकते हैं एम्प्लॉय को कि आप स्टॉक को इशू करें। एक मेल शूट होता है, ये एक मेल शूट होता है कि आपको स्टॉक इशू किया गया है। ये पूरी एक पूरी चेन या साइकिल वी कैन से कि ये चलती है। एक्सेप्ट करना कोई चीज, अगर इनमें से कोई आइटम दोनों एक्सेप्ट करना है या रिटर्न करना है, आप ये रिटर्निंग ले लें। कोई फॉल्टी रीजन रिटर्न करने का या डायरेक्ट कोई रीजन है तो आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कौन इन दोनों में से कौन सा सीरियल नंबर, कौन सा यूनिक नंबर आपने रिटर्न लिया। ये तो ये एक पूरा स्टॉक जो है इसका एक डिटेल बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनसे ये स्टॉक इशू भी हुआ और किस डेट में रिटर्न हुआ, ये पूरी डिटेल। वाउचर भी जनरेट हो जाएगा। इस जनरेट वाउचर को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपके को रिक्वायरमेंट होगी। तो एक पूरी साइकिल है। इसी तरीके से देखिए इशू, देयर आर इशू ऑप्शन लाइक एम्प्लॉय, इफ यू सेलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी, यूजर आईडी, इट विल रिफ्लेक्ट हियर। आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एचओडी को या डायरेक्ट प्रोफेसर के एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी पे आप असाइन कर सकते हैं। थर्ड, स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड आपकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे है तो उसमें भी आप असाइन कर सकते हैं, बट स्टूडेंट को उसके लॉगिन पे नहीं दिखेगा। फोर्थ, आप कभी कभी फंक्शन होता है यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन में, उनकी डिटेल समर पोर्टल पे नहीं होती, तो उनको आप डिटेल में आप डाल सकते हैं उनकी डिटेल। जिनको जो स्टॉक इशू है आप इशू कर सकते हैं। आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए या फर्दर डिटेल रहेगी कि इस स्टॉक को यहाँ पे इशू किया गया है। तो इस तीन तरीके से स्टॉक को इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इशू करना, यानी कि एडमिन ने, स्टोर एडमिन ने स्टॉक को खरीदा, खरीदने के बाद स्टॉक को इस पोर्टल पे ऐड किया, ऐड करने के बाद कंसर्न पर्सन को इशू कर दिया जहां से उसे रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। ये डायरेक्टली इशू हो गया। अब अगर किसी डिपार्टमेंट ने इस स्टॉक को किसी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना था, देयर इज जस्ट स्लाइटली डिफरेंस इशू एंड ट्रांसफर। इशू मींस अगर हमने किसी को स्टॉक इशू किया तो वो पर्सन उस स्टॉक को कोई किसी और को इशू नहीं कर पाया, बट अगर हमने ट्रांसफर किया, यानी कि किसी ट्रांसफर, हम किसी पर्सन को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रॉस डिपार्ट, कोई डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना स्टॉक ट्रांसफर नहीं करेगा डायरेक्टली। अगर कोई स्टॉक किसी को ट्रांसफर करना है तो जिसको इशू हुआ पहले वो मेन एडमिन को रिटर्न करे, फिर वो स्टॉक किसी और को इशू हो गया या ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर के केस में आप स्टॉक को डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक होगा आप यहाँ पे ट्रांसफर स्टॉक करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर स्टॉक करेंगे, वो स्टॉक का नाम आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे किस स्टोर से किस उसमें कर रहे हैं, ये आपको सब डिटेल ऑटोमेटिक आएगा। और इस ये स्टॉक जो है, जो ट्रांसफर स्टॉक है, वो डिपार्टमेंट के लॉगिन पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। रिफ्लेक्ट इन द सेंस नाउ ही इज एबल टू इशू विद इन हिज डिपार्टमेंट टू एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी, करेक्ट। तो ट्रांसफर और इशू में ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अब अगर इस पोर्टल को और भी फुल फ्लैश में अगर आपको इस मॉड्यूल को रन करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जो यूजर है उसको भी इन्वॉल्व करें, तो उसके लिए सभी यूजर्स की लॉगिन है आपके पास, एम्प्लॉय लॉगिन, उसको आपको रिक्वेस्ट डालना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा कि वो ऑनलाइन ही स्टॉक इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करे, ठीक है। तो मैं एक लॉगिन ओपन कर रहा हूँ। Okay. This is my user login, or we can say employee login, not administrative login. It is totally different with administrative login. So here all the personal information like employee service leave and others, their finance, payslip and others, and governance. In the governance inventory section, employee can see all the issue, directly issue or forcefully stock by the store admin. He can see. आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरी डिटेल उनको दिखेगी, कब कौन सा स्टॉक उनको इशू किया। जैसे पहला स्टॉक ही मैंने इशू किया था तो वो यहाँ पे डिटेल दिख रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है वो, कोई भी एम्प्लॉय
जो स्टॉक अवेलेबल है, जिस स्टॉक की अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन 0 यानी कि अवेलेबल है, वही स्टॉक को इंडेंट रिक्वेस्ट रेज कर सकता है, उसी स्टॉक के लिए इंडेंट रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। उसमें चूंकि मेरे पास प्रोक्योरमेंट का अभी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था। तो कोई भी अगर कोई एम्प्लॉय या यूजर चाहता है कि हम स्टॉक नहीं है उसका भी रिक्वेस्ट डालें, तो वो अभी नहीं डालेगा, वो उसके लिए अभी हमारा प्रोसेस में है बनने के, वो हो जाएगा तो अभी हम दे देंगे। बट अगर स्टॉक अवेलेबल है तो वो यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करेगा कि क्या वो डायरेक्टली सेंट्रल से मांग रहा है या उसके खुद के डिपार्टमेंट से मांग रहा है। ठीक है, तो इस सेंट्रल से मांगेगा, सेंट्रल के सारे स्टोर उसको दिख जाएंगे, या जो स्टोर एक होगा दिख जाएगा। यहाँ पे उसके इस तरीके से कैटेगराइज होंगी। ठीक है, स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे वो। एक बार में 25 आइटम स्टॉक कोई भी रेज कर सकता है इंडेंट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, सबमिट किया। अभी उसके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, अभी एडिट कर सकता है। जैसे ही यूजर फाइनल सबमिट करेगा एक ठीक है, एक्चुअली हायरार्की के लिए पूछ रहा हूं मैं, हायरार्की इसको अभी के लिए ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए। जी बिल्कुल सर, हम लोग वेट करेंगे। जी ठीक है, मैं एक सबमिशन, ठीक है, फाइनली सबमिट किया। इस केस में भी एक मेल शूट होगा, यानी कि एडमिन को जिसको अप्रूव करना है, यानी कि अभी तो डायरेक्ट स्टोर एडमिन पे के पास जा रहा है, तो उनके पास ये रिफ्लेक्शन आएगा कि ये डिटेल आएगी कि आपको एक रेज किया गया है और इशू करना है। साथ में डिमांड वाउचर भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, इस डिमांड वाउचर को एम्प्लॉई प्रिंट कर सकते हैं, और अगर उन्हें फिजिकल अप्रूवल लेना है तो वो अप्रूवल भी ले सकते हैं। बाकी जहाँ पे अप्रूव करेगा स्टोर एडमिन, वहां इसे अपलोड भी किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं इस डिटेल में। इसमें जो इंफॉर्मेशन है, क्या रिफ्लेक्ट करना है क्या नहीं रिफ्लेक्ट करना है, उसके लिए फीचर सेटिंग में ऑप्शन है, जहां पे आप जाकर के इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी एम्प्लॉय ने इंडेंट रिक्वेस्ट रेज किया। अब मैं चलता हूँ एडमिन सेक्शन पे। ठीक है, एडमिन सेक्शन पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड आइटम, ये रिक्वेस्टेड आइटम दिखा रहा है। ठीक है, इसे अप्रूवल के लिए ऑप्शन आएगा एडमिन के पास, एक्शन लेंगे और इशू या रिजेक्ट कर सकते हैं। इशू के केस में आप यहाँ पे इशू कर सकते हैं। अगर ये डिटेल होगी तो आप डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। जो स्कैन जो वेरीफाइड कॉपी है, स्कैन कॉपी है, जो अप्रूवल अगर आपने फिजिकल लिया तो उसे अपलोड भी कर सकते हैं फिजिकल उसे देखने के लिए। अब आप देखें ये स्टॉक अप्रूव भी हो गया, ये अप्रूवल एम्प्लॉय के पास भी आ जाएगा कि आपका स्टॉक अप्रूव हुआ। जैसे ही अप्रूव होगा इशू वाउचर भी जनरेट हो जाएगा एम्प्लॉय के पास भी और एडमिन के पास भी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्टेड आइटम में आप देख लें, अब ये भी जनरेट हो जाएगा, इशू वाउचर भी जनरेट हो रहा। दिस इज डायरेक्टली वी कैन से कि यहाँ पे जो इंडेंट रिक्वेस्ट हो रहा है वो यूजर कर रहा है, और जो अप्रूवर है वो स्टोर एडमिन है। यहाँ पे अभी हमने डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं लिया। अब अगर हम हायरार्की सेट करते हैं उस टाइम, फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हायरार्की इन्वॉल्व हो जाएगा कि पहले ये वेरीफाई करे फिर वो वहां से अप्रूवल आए। ठीक है, उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसके लिए हमको फीचर सेटिंग में जाना है। उसके लिए अभी हमें फीचर सेटिंग्स में जाना है, और जो सेटिंग है वो फीचर सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से जो अभी मैंने फीचर डिसेबल किया था उसे इनेबल करना है। इनेबल और डिसेबल हायरार्की फीचर्स। ओके, जैसे ही आप करेंगे विदाउट अप्रूवल, फिर स्टॉक रिक्वेस्ट इंडेंट रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते, और रेज करेंगे तो अप्रूवल के थ्रू ही आएगा। तो अब हमने इंडेंट रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज किया, और सेटिंग्स के दूसरे पार्ट में आप जाकर के इंडेंट अप्रूवल हायरार्की फीचर्स में आप जाएं 10 नंबर सेटिंग्स में, और यहाँ पे हायरार्की को डिजाइन करें। हायरार्की डिजाइन करने के लिए ऐड इंडेंट अप्रूवल हायरार्की यहाँ पे जाएं। ठीक है, सेंटर के लिए बना रहे हैं या डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं, आप सेलेक्ट करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आप डाल दें, यानी कि उस डिपार्टमेंट को आप डाल लें, या यूनिवर्सिटी कैंपस हमने ये डाल दिया। ठीक है, अप्रूवल बेस अमाउंट अभी ये नो होगा, ये अमाउंट बेस अभी अप्रूवल ऐड नहीं हुआ, सो इट विल बाय डिफॉल्ट ये नो ही सेलेक्ट होगा। डिफॉल्ट अथॉरिटी, नाउ
यहाँ से एक छोटा सा आपको और काम करना होगा कि इन ड्रॉप डाउन में जो डिफॉल्ट अथॉरिटी लिस्ट देखनी है, ये लिस्ट देखने के लिए आपको हायरार्की सेट करने होंगे। हायरार्की सेट करने के लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी बनाई होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी पे आप यहाँ से ये रोल आपको पर्टिकुलर असाइन करने होंगे। ये अगर जो डिफॉल्ट अथॉरिटी होगी, जिसको डिफॉल्ट अथॉरिटी देंगे और डिफॉल्ट अथॉरिटी के ड्रॉप डाउन में विजिबल होगा, जिसको आप आईएमएस इंडेंट वेरीफायर देंगे वो वेरीफायर वाली उसमें विजिबल होगा, और जिसको अप्रूवल देंगे अप्रूवल में विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, हमने पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे ये दिखेंगे। वेरीफायर में देख सकते हैं एक से ज्यादा वेरीफायर होंगे, एक से ज्यादा अप्रूवर होंगे, और एक्टिव करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेव करने पे आप जैसे ही फिर इंडेंट रिक्वेस्ट रेज होगा तो उसके क्रॉस डिपार्टमेंट के पास, सॉरी उसके अलॉन्ग विद उसके डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया तो नेक्स्ट अथॉरिटी के पास ऑटोमेटिक जाएगा, यानी कि एडमिन के पास या फिर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास। तो ये अप्रूवल अथॉरिटी का पूरा मैकेनिज्म है। सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है। बस आपको रोल देना है, और टेस्ट करने के लिए आप अपने पोर्टल पे ये सारे फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंटल अप्रूवल के थ्रू अगर स्टॉक लेना है, अगर नहीं लेना है तो डायरेक्टली लेना है, तो आप अप्रूवल हायरार्की को स्टॉप करके डायरेक्टली इन यूजर रिक्वेस्ट टू स्टोर डिपार्टमेंट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर आपको यूज करना है। नेक्स्ट सेटिंग में देखिए, नेक्स्ट सेटिंग आप एक्सप्लेन करते हैं। ईमेल टेम्पलेट्स, जो ईमेल हम रिसीव कर रहे हैं मेल पे, इनका टेम्पलेट्स भी आप बना सकते हैं कि जैसे इंडेंट रिक्वेस्ट रेज कर रहा है उस टाइम क्या आए, अप्रूवल के टाइम क्या मेल आए, तो वो सारी फीचर्स हैं ईमेल टेम्पलेट में। आप वन बाय वन करके आप ईमेल टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट के या एक्सपर्ट्स के हेल्प से, या खुद भी कर सकते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, यूनिट मास्टर में आपको ऐड करने का एक ऑप्शन दिया गया है कि जो इस तरीके से जैसे हमने टोटल काउंट लिया था, तो ये ऐड कर सकते हैं इस मास्टर में। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बल्क अपलोड मैनेजमेंट में हमने ये फीचर हमारे सारे मॉड्यूल्स में है, यानी कि कुछ डिटेल को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इसके लिए है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉड्यूल बहुत ही इजी है, फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पोर्टल पे भी। कुछ अगर फाइनल सबमिट ना करें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या हमारे डेमो पोर्टल के थ्रू भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्पोजल कैटेगरी में आपको वो सारे डिस्क्रिप्शन देने हैं। अगर किसी स्टॉक को आप डिस्पोज कैटेगरी में मार्क करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस मास्टर से वो लिस्ट फेच होगा, जैसे कि मैं दिखाऊं। ठीक है, अगर मैं किसी स्टॉक को डिस्पोज करना चाहूँ, डिस्पोज ऑफ में, तो ये इंफॉर्मेशन डिस्पोज टाइप, ये इंफॉर्मेशन वहां से उठ के आ रही है, और यहाँ पे आप डिटेल डालने के बाद उस आइटम को डिस्पोज ऑफ करेंगे, जिससे कि वो अवेलेबल क्वांटिटी में माइनस हो जाए। जब हमने स्टॉक इशू किया था तो यहाँ से अवेलेबल क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रही थी, माइनस हो रही थी, ये मैं दिखाना भूल गया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देन किसी स्टॉक को आपको इनएक्टिव करना है, आप इनएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सबमिट आप एक साथ, अगर आपने बहुत सारे स्टॉक ऐड किए, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक का बिल जनरेट, पीडीएफ बिल नंबर यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक ऐड करना, अप्रूवल हायरार्की सेट करना, इशू करना, रेंट इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करना। ठीक है, इसके आगे आप इशू इन्वेंटरी में देख सकते हैं पूरी डिटेल की किसको डिपार्टमेंट है वहाँ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ये इशू हुआ है, आप इसकी भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, माई इशू आइटम में आप अपने आइटम जो इशू चेक हुए हैं वो देख सकते हैं। ये सारे रिक्वेस्टेड आइटम, मैनेज पेंडिंग पेंडिंग इंडेंट रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट, अगर किसी जैसे कोई इंडेंट रिक्वेस्ट यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, वैसे ही आपका डिपार्टमेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें स्टॉक चाहिए, किससे, इन स्टोर एडमिन से, तो वो डिटेल आपको दिख जाएंगी। ठीक है, सर्च इशू आइटम में आप किसको क्या इशू किए हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपना सर्च करें, यहाँ से आप ये देखें, ये पूरी डिटेल आ गई कि हमें अभी आज तक क्या क्या इशू हुआ है, और सबके अगेंस्ट में आप एक ये प्रिंट आप ले करके आप पीछे स्टॉक के पीछे इसको आप स्पा कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल में रख सकते हैं। साथ में डॉक अगर कुछ आपको अपलोड करना है इसके रेफरेंस में, तो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्स हैं। देन
रिपोर्ट्स में रिपोर्ट आपके पास दो कैटेगरी की हैं, एक तो एडवांस रिपोर्ट है दोनों। एडवांस रिपोर्ट में आपको एक अवेलेबल स्टॉक की रिपोर्ट, नॉट अवेलेबल स्टॉक, ये सारी रिपोर्ट आएंगी। रिपोर्ट के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, डिटेल कस्टम स्टॉक रिपोर्ट, डिपार्टमेंट वाइज, ये सारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट इशू पर पर्सन, अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ डेट, इस डेट रेंज के बीच में, ठीक है, कैटेगरी अगर आपको सेलेक्ट करना है कर लें। इशू किसको आपने क्या सामान किया, यहाँ से भी आप ये सर्च कर सकते हैं। Yes. ठीक है, वाउचर जनरेट कर सकते हैं, इसे पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपकी आएगी साथ में। इन रिपोर्ट्स में आप किसी पर्टिकुलर स्टोर में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो उस पर्सन की, ठीक है। जनरेट इशू वाउचर, ये भी आप इशू वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा यूज होती हैं, तो आप इन रिपोर्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। और भी रियल टाइम की रिपोर्ट है, कस्टम स्टॉक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स। सेटिंग्स में जाइए 7 नंबर। ठीक है, डाउनलोड आप एक्सेल, जनरेट पीडीएफ, इस तरीके की रिपोर्ट आएंगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए होगी, पूरी स्टॉक जो आपने ऐड की है वो एक्सेल में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में इशू जो किया उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बल्क में आप स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं, बट बल्क में इशू के लिए नहीं, आपको इशू 1 बाय 1 करना है। एक क्वेरी इसमें और बनती है कि अगर जैसे आप ओपनिंग बैलेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपके बिल पे जितना स्टॉक है वो आप ऐड करेंगे, चाहे वो प्रीवियसली आपने खरीदा हो या बहुत ही पहले खरीदा हो, ठीक है। और मान लीजिए आपने 10 लैपटॉप 2010 में खरीदा था, तो वो सभी को इशू होगा, तो आपको जीरो नहीं ऐड करना, आपको वो पूरी स्टॉक बिल 10 उस बिल की डिटेल ऐड करनी है। उस बिल पे 10 लैपटॉप है उसको ऐड करना है, और जिसको असाइन किया है आप बैक डेट में जाके असाइन कर सकते हैं, जिससे कि उसकी अवेलेबल क्वांटिटी जीरो। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको पूरा बिल पे डिटेल डालना है, जिससे कि ऑडिट के टाइम आप जब भी रिपोर्ट निकालना चाहें वो आपकी रिपोर्ट मैच हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है जो इस मॉड्यूल में अभी तक है। अब हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, जो आप लोग के इश्यूज हैं या क्वेरीज हैं उस पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, चाहिए देखिए। एक बार यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले राइट में स्क्रॉल करेंगे सर। रानी लक्ष्मीबाई से अगर विकास सर या अदर सभी सर लोग ज्वाइन है, अगर कुछ आपको इशू है, डिस्कशन है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सीएम का बैलेंस आ रहा है ना 2025 का, हेलो, इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट गलत है। फिर डेट मैंने मेल में मेंशन किया। आप एक काम करिए सर, राइट में जाके पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए, सेकंड नंबर डालो, सेकंड नंबर जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ, अभी यहाँ पे क्रेडिट में 0 करिए, नीचे इसके नीचे क्रेडिट काउंट नीचे जी 0। स्टार्ट डेट आप सेलेक्ट कीजिए, 1% स्टार्ट डेट आप सेलेक्ट कीजिए 1 जनवरी 2025। हेलो, सर चेक करना पड़ेगा लॉन्च 1 जनवरी तक। विवेक जी, हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस विवेक सर। प्लीज सर, आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट। सर मेरे क्वेरी है कि फ्रॉम RNBCAU हम लोग का क्वेरी है सर कि जो एडमिन है IMS एडमिन, क्या वो एक साथ हो सकती है? हाँ, आप बना सकते हैं, पर दिखेगा सबको सेम रिकॉर्ड। ओके ओके सर, थैंक यू। बाकी मॉड्यूल सर पूरा थोड़ा समझ में आया सर, जो एक्सप्लेन मैंने किया? जी जी जी, थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, ओके। ओके।
सर रानी लक्ष्मीबाई से। अच्छा अब सुमन मैडम, हेलो। Hello, Hanji, thank you, sir. Sir, can you provide recording of this session? Okay, sure, I will provide you recording. It will take more at least 2 or 3 days. मैं provide yeah. कर दूंगा, लेकिन ठीक है ना? Okay, Hanji, thank you. ये आपका हो गया कंसर्न जो आपका एक एम्प्लॉय का था, ठीक है। अब हम ना बल्क में एक बार चेक कर लेते हैं बाकी की। तो एक बार आप अपने एडमिन पोर्टल पे जाके सिर्फ कैजुअल लीव का एडमिन वाले पोर्टल पे देखिए सर, ये एडमिन पोर्टल है जी। लीव अकाउंट में जाके कैजुअल लीव का प्रिंट करेंगे और 2025 का प्रिंट करेंगे। नहीं लेते। अरे तुम्हें वाला डिप्लोमा स्कूल वाले में आता है ना, पेरेंट देते हैं उसे, बोल दे देगा डिप्लोमा इन से ऐड मत कर देना। मीटिंग कंक्लूड करें या अभी कोई और डाउट है, क्वेरी है? No, sir, no further query. ओके, Okay. Thank you, sir. Very well presented. thank you sir. So I will conclude this meeting and Definitely. I will sir, send the summary. Okay. Mhm. Kindly send the name and designation and your institute name if there is an okay. NIT Delhi has participant list. Okay. Thank you everyone. Thank you. Thank you.